अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 18 रबी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमानतदार और दियानतदार ना हो उसका ईमान कामिल नहीं, और जो अहद का पाबंद ना हो इसका दीन कामिल नहीं। और अब सुर्खियाँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की गेट पर तलबा ने किया एहतजाज। रोहित से इंसाफ की मांग। अखलाक का भाई और नजीब की मां भी एहतजाज में हुए शामिल। हुकूमत हैदराबाद को आलमी शहर बनाने के अहद के पाबंद। KTR का बयान। फौजियों के लिए वेलफेयर फंड कायम करने का KCR ने किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत पर बातें ज्यादा अमल कम करने का इल्जाम। कानून साज कौंसिल में अक़लियती बहबूद पर हुई मुख्तसर मुबाहिस। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात हुए मुकम्मल। नतीजा महफूज। अदालत की हिदायत के बाद जारी होगा नतीजा। और अब तफसील सीधे रुख करेंगे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जहां पर रोहित वेमुला की मांग इस वक्त पहुंची है। रोहित वेमुला की बरसी के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर एहतजाज का मरकज बन गई है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास तलबा ने आज एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रोहित वेमुला की बरसी के मौके पर तलबा जमा हुए। एहतजाज में रोहित की मां, नजीब की मां और अखलाक के भाई भी शामिल हैं। दर्जनों नौजवानों के जमा हो जाने से हालात कशीदा हो गए। पुलिस और तलबा में धगमपेल हुई। एहतजाजी रोहित, अखलाक और नजीब के खानदान से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। కంప్లైంట్ ఇచ్చున్నారు, నేను అర్థం చేసుకున్నాను. నువ్వు నీకు చదువుకున్నావు కదా, కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు. నువ్వు అనవసరంగా లోపల ఇప్పుడు ఈ క్షణం ఈ క్షణంలో నేనేమన్నా మీరు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నైట్ ఉండండి, అక్కడ పడుకోండి, మీ VC గారు జరిగిన అభ్యంతరాలు. ఈ పరిస్థితిలో పోతే చట్టాన్ని వైలేట్ చేస్తాను అంతేనా? నేనేమన్నా అంటే ఇక్కడ వరకు పెర్మిషన్ అనేది ఈ రోజు ఇది కాదు కాబట్టి నేనే చెప్పాను. నేను వాళ్ళందరూ వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటే అమ్మగారిని వాళ్ళతో మాట్లాడమని నేను పంపిస్తాను కదా, మాట్లాడండి అమ్మగారిని మాట్లాడండి. తర్వాత నేనే చెప్పేది, తర్వాత ప్రలోభాలకు ఉంది. ఇప్పుడే అడ్వకేట్ కావాలంటే మీరు అందరూ డిస్పర్స్ అయినా 1 hour మీరు ఓన్లీ నేను తీసుకుంటాను. అందరూ సెంటిమెంట్. ఇంకోటి నేను ఫోర్స్ఫుల్ గా చట్టాన్ని ఏమైనా నా గౌరవం ఉన్నా కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి అయిపోతున్నది. నాకు ఆ పరిస్థితి దయచేసి తీసుకురావాలి. జరిగింది బాధాకరమైన సంగతి నాకు తెలుసు, కానీ మేమైనా విక్టిమైజ్ అయింది. నేను ఏమైనా కేసు చేయదలుచుకోవాలి. నా సెంటిమెంట్ దాన్ని అధిగమించి పోయినామంటే నేను ఎంత చేయాల్సి పెట్టుకోండి. నేనుంటే అమ్మగా గొడవ చేస్తారని కాదు, సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ అయిపోయింది. నాకు కూడా మీకైనా నాకేం దురదృష్టం లేదు. మీరు పోవడం వల్ల నాకేం అభద్రతా భావం కూడా ఏం లేదు. నేను ఎన్నడూ కూడా యూనివర్సిటీకి ఎన్నోసార్లు వచ్చినా ఇప్పుడు రాలేదు. మేము పంపించి నేను VC గారితో మాట్లాడొస్తానట్లయితే వీళ్ళు ఎవరు వద్దు, నేను వెళ్తాను, నన్ను తీసుకెళ్ళండి, సెక్యూరిటీ నన్ను తీసుకెళ్ళండి, పట్టుకోండి, నేను వెళ్ళొస్తాను. మాట్లాడే VC గారు నువ్వు సహకరించావు మళ్ళీ ముందు रोहित वेमुला की बरसी के मौके पर SIO समेत तलबा तंजीमों ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास एहतजाज किया। SIO ने रोहित वेमुला के ख़ानदान से इंसाफ करने की मांग की और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। लापता तालिब इल्म नजीब को भी तलाश करने का भी SIO ने मुतालबा किया। Rohit Vemula, and we don't consider this as a suicide. We consider this as a institutional murder, which is against the constitutional rights and law.
stopping people for registering their peaceful protest and giving their views is really against the constitutional right, which shows that really something wrong happening here, and we demand justice for Rohit Vemula. प्रोफेसर शशिधर राव की क़ियादत में भी धरना दिया गया और रोहित वेमुला के खानदान से इंसाफ करने की मांग की गई। रोहित वेमुला की बरसी के मौके पर यह धरना दिया गया। प्रोफेसर शशिधर राव ने वाइस चांसलर अप्पा राव और मरकजी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ఇక్కడ ఒక 1 ఇయర్ అయిన తర్వాత కూడా ఏడాది అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పటి వరకు రోహిత్ వేములకు జస్టిస్ జరగలేదు. కాబట్టే ఇక చాలామంది దేశమంతా చాలామంది సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్, స్టూడెంట్స్, ప్రొటెస్ట్, పొలిటీషియన్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ మేమందరం వచ్చి ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఏమడుగుతున్నాము? మాకు న్యాయం కావాలి అంటున్నాం. ఒక ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ వేసినాము. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్లో నంబర్ 1 ప్రొఫెసర్ అప్పారావు ది వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ ఒక ద్రోహి అని చెప్పినాము, ఒక కల్ప్రిట్ అన్నాము. బండారు దత్తాత్రేయ ఒక యూనియన్ మినిస్టరు, ఆయన తర్వాత అప్పుడు స్మృతి ఇరానీ ఒక యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టరు, వాళ్ళందరూ ఎఫ్ఐఆర్లో మేము బుక్ చేసినాం. ఇప్పటి వరకు యాక్షన్ లేదు. మృతికి కారణమైన వ్యక్తులను శిక్షించేంత వరకు కూడా మా ఉద్యమాన్ని ఆపేది లేదు. మరి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు జరుగుతున్న దేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్ మతోన్మాద వ్యక్తులకు ఎవరైతే విక్టిమైజ్ చేసి ఈ దేశంలో దళిత, బహుజన, మైనార్టీ వ్యక్తులను ఈరోజు బీఫ్ తిన్నారని ఒక నజీబ్ కేసులో కానీ ఇవాళ రోహిత్ వేముల వీళ్ళందరూ కూడా న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా మా ఉద్యమాన్ని ఆపేది లేదు. तेलंगाना कानून साज कौंसिल में आज अक़लियती बहबूद पर मुबाहिस हुई। एक जानिब डिप्टी सीएम महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों का जिक्र किया तो दूसरी जानिब कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने केसीआर हुकूमत में बातें ज़्यादा और अमली काम कम करने का इल्ज़ाम लगाया। डिप्टी सीएम ने अक़लियतों के बजट और मुख्तलिफ स्कीमों से ऐवान को आगाह किया। बहबूद के लिए तेलंगाना के पहले बजट में जुमला 1030 करोड़ बजट मुख्तस किया गया। इस साल अक़लियती बजट में इजाफा करके उसे 1204 करोड़ रुपये किया गया। हमारा मानना है कि तालीम के जरिए ही रियासत की अक़लियतों की मौजूदा पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। तालीमी साल 2016-17 में जुमला 71 अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए गए। आइंदा तालीमी साल में मजीद 129 अक़ामती स्कूल कायम किए जाएंगे। इंटरमीडिएट तक पीजी कोर्स में तालीम हासिल करने वाले 1,18,000 तलबा और तलबात को दर्जे फहरिस्त तबकात क़बाइल और पसमानदगी तबकात के तलबा के ममासिल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फराहम की गई। ओन ऑटो स्कीम के तहत जो कि गरीब ऑटो ड्राइवर है उन्हें ओन ऑटो देने के लिए एक मुफर्रद स्कीम शुरू की अध्यक्षा। इस स्कीम के तहत 1783 अक़लियती नौजवानों को 50% सब्सिडी पर ऑटो रिक्शा दिया गया। इसी तरह अक़लियतों को रोजगार के लिए दिए जाने वाले खर्च पर सब्सिडी की 50% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ICIL, CIP, IT और सटविन जैसे इदारों से अक़लियती तलबा और तलबात को रोजगार के उसूल में मददगार हुनरमंदी की तरक्की के लिए कोर्सेज की कोचिंग भी फराहम की जा रही है। कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने वक्फ समेत अक़लियती मसाइल पर केसीआर हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। मोहम्मद अली शब्बीर के सवालात के आगे महमूद अली बेबस नजर आए। मोहम्मद अली शब्बीर ने पूछा कि बहैसियत वज़ीर माल महमूद अली ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए। उन्होंने मणिकुंडा जागीर की ज़मीन का हवाला दिया। उर्दू को सरकारी ज़ुबान, हज हाउस और नौजवानों के रोज़गार के हवाले से वादों को पूरा न करने का अपोजिशन ने केसीआर हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। 90% वक्फ प्रॉपर्टीज का किसके साथ है साहब? रेवेन्यू वर्सेस वक्फ, कलेक्टर वर्सेस, यानी रेवेन्यू बोल तो कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, जो भी आरडीओ, एमआरओ के साथ ही हमारे झगड़े हैं। आप ये बताइए कितने मीटिंग एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट के तेलंगाना कलेक्टरों के साथ, जॉइंट कलेक्टर के साथ, आरडीओ के साथ, आपके ऑफिसरों के साथ कितने कॉन्फ्रेंसेस, कितने वीडियो मीटिंग्स हुए जिससे कितने रिजॉल्व करे आप? एक तरफ कहते हैं कि 100 दिन में हम देंगे, उसके बाद इसी हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मणिकुंडा जागीर के अंदर जो डिस्प्यूट है रहने दो, बच गए 8,800 एकड़ जमीन मैं जल्द से जल्द वापस करूंगा। और जल्द से जल्द 2.5 साल हो गए, अभी तक 1 इंच भी जमीन वापस नहीं आई मणिकुंडा जागीर के अंदर। अध्यक्षा उर्दू अकादमी, अध्यक्षा बड़ी अफसोस की बात है 10 डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में 9 में पहले से है उर्दू सेकंड लैंग्वेज। अभी एक खम्मम बच के है हमारे सुधाकर रेड्डी साहब का डिस्ट्रिक्ट, वो खम्मम के साथ
कोई एक डिस्ट्रिक्ट को आप उर्दू नहीं बना सक रहे, आप उर्दू सेकंड लैंग्वेज आप नहीं बना सके, और उर्दू को आज तक उर्दू अकादमी बाइफरकेशन नहीं करा सके आप लोग। 10 शेड्यूल में है बोलते आप, अरे 2 उर्दू अकादमी ये बनना था, नहीं बन पाया। आज उर्दू जबान कैसे तरक्की करेगी? गवर्नमेंट ने 2012 में 12 करोड़ रुपए हज कमेटी और वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, 12 करोड़। आज तक लैंड आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। कभी कहा गया कि भाई हम पहाड़ी शरीफ में बनाएंगे, वो इसी हुआ। अब मौजूदा वक्फ बोर्ड के पास जो बिल्डिंग बनी हुई हज हाउस की, वो बिल्डिंग 1.5 साल से तो उसका बिल्डिंग का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से झगड़ा रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने 7% का रिजर्वेशन है, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि एक्सपर्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से आप राय हासिल करके बीसी कमीशन को उतारना था। जुडिशियल आदमी को नहीं डाले आप पहले जस्टिस पुट्टुस्वामी, जस्टिस दिलावर सुब्रमण्यम स्वामी सर डाले थे। आज भी हम आपसे कहते हैं कि बीसी कमीशन के रिपोर्ट जल्दी मंगाइए। और सिद्धूर कमेटी 9 से 12 बोल रहा, 12 बोल रहे, किसकी क्या सही है? जल्द से जल्द जो वादा आप करें, 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से हमारे 4 से 12 लाख बच्चे आज एजुकेटेड बने नौकरियों में। पुराने शहर में मेट्रो की शुरुआत के लिए मजलिस पर रुकावट पैदा करने का बीजेपी ने इल्जाम लगाया और बीजेपी के मौक़िफ़ की वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने तायद करते नजर आए। జరుగుతున్నంత స్పీడ్ ప్రపంచంలో ఏ మెట్రో ట్రైన్ నిర్మాణంలో కూడా జరగలేదని చెప్పారు. నేను చాలా సంతోషపడ్డాను. సిటీ ఎమ్మెల్యేస్ తోటి అన్నారు ఆ రోజు, నిజంగా సంతోషపడ్డాను. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఎందుకై ఎక్కడ లోపం ఉంది? ఇది ప్రభుత్వం ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీలో ఇంతవరకు పని ప్రారంభం కాలే. ఓల్డ్ అలైన్మెంట్ లో అన్ని మెట్రో ట్రైన్ సంబంధించినటువంటి లైన్లు ప్రారంభమైనప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో కూడా జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓల్డ్ సిటీలో ఓల్డ్ లైన్ ప్రకారం ఏదైతే మీరు అన్ని లైన్లు ఓల్డ్ లైన్ లో తీసుకుంటున్నారు, ఓల్డ్ అలైన్మెంట్ లో తీసుకుంటున్నప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో కూడా ఇంతవరకు ఒక గడపార పెట్టలేదు. మెట్రోలకు సంబంధించి ఒక పిల్లర్ కూడా వేయలేదు అధ్యక్ష. ఓల్డ్ సిటీ ప్రజలేం పాపం చేసుకోలేదు. గౌరవ మంత్రి స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మరి వేరే స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు వ్యతిరేకించినప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలా? అక్కడి నుంచి తీసుకుపోవద్దని స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు చెప్తున్నారు. मजलिस ने वज़ीर दाखिला की जानिब से बीजेपी के इल्ज़ाम की तायद करने पर एतराज़ किया। मजलिस ने वजाहत की कि वो पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुतबादिल रूट की तजवीज़ रखती है। तवक्को के बरखिलाफ हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब नरसिम्हा रेड्डी साहब, ये तमाम अवाम हैदराबाद की जानती है कि बीजेपी वालों को तो ओल्ड सिटी से दुश्मनी है, लेकिन ये भी उनकी सुर में सुर मिला रहे, ये हैरत की बात है। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस और जमात ने कभी ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो रेल लाने के खिलाफ नहीं थी। हमने हमेशा से अच्छी रूट, जिस रूट की तरफ जो रोड ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो रेल लाने के लिए जो रूट से आ सकती वो रूट का प्रपोज किया, बजाय उसके जो 50 फीट की रोड है जिसके ऊपर से मेट्रो रेल के वास्ते प्रपोज करे, वहां पर जो पहले छोटे रोडा हैं आप उसको कर 10-10 फीट के पूरी ओल्ड सिटी को स्लम बना देना चाह रहे हैं आप। जीएचएमसी के मौजू पर आज तेलंगाना असेंबली में मुबाहिस हुए। वजीर बल्दी नज़्म केटिया ने अपोजिशन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद को आलमी दर्जे का शहर बनाने के अहद की पाबंद है और वो इस सिमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने इस ज़िमन में वानी शहर खुली कुतुब शाह की दुआ का भी हवाला दिया। వారికి ముందుగా ఇచ్చే కమిట్మెంట్ మాత్రం ఒకటి అధ్యక్ష, ఇంత గొప్ప మహానగరాన్ని 425 సంవత్సరాల పైచిలుకు చరిత్ర ఉన్న ఈ మహానగరం, అద్భుతమైన భవిష్యత్తున్న ఈ మహానగర అభివృద్ధి పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టమైన ఆలోచనలతో, స్పష్టమైన ప్రణాళికలతో ఉన్నారు. ఆ విషయంలో ఎవరికి దిగులు గాని, ఎవరికి రెండో అభిప్రాయం గాని అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఏ మాట అయితే మా విజన్ లో చెప్పామో, హైదరాబాద్ ను ఒక విశ్వ నగరంగా చూడాలని కలలు కంటున్నామని చెప్పామో దానికి కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పి మళ్ళొకసారి సభకు నేను ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ మహానగరం విషయానికి వస్తే అధ్యక్ష, ఒకనాడు మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా ఈ నగరానికి ముగ్గుపోసినప్పుడు ఆనాడు అన్నాడంట ఆయన, యా అల్లా, ఒక చెరువు ఎట్లా అయితే నిండి చేపలతో కలకల్లాడుతూ ఉండాలని కోరుకుంటామో, జీవరాశితో కలకల్లాడుతూ ఉండాలని కోరుకుంటామో, అదే పద్ధతిలో మా హైదరాబాద్ కూడా ఆబాద్ కావాలి, ప్రజలతో అలలాడుతూ ఉండాలి, బ్రహ్మాండంగా ఉండాలని కోరుకున్నాడంట.
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के फौजियों की बहबूद के लिए वेलफेयर फंड कायम करने का ऐलान किया है। असेंबली में वजीर आला केसीआर ने ऐलान किया कि सैनिक वेलफेयर फंड के तहत सालाना 80 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। इस फंड में चीफ मिनिस्टर 25,000 रुपये, एमएलए, एमएलसी और एमपीज 10,000 रुपये सालाना जमा करवाएंगे। मुल्क भर में अपनी नौयत की ये पहली स्कीम समझी जा रही है। तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन से आज खुराअंदाजी के जरिए कर्ज हासिल करने वालों का इंतखाब अमल में आया। पहले छमाही के लिए जुमला 1122 दरखास्तें वसूल हुई थी, जिनमें से 230 अफराद हुकूमत के खर्च के लिए मुंतखब हुए। 80% सब्सिडी और 20% लोन की बुनियाद पर अक़लियती उम्मीदवारों का कर्ज का इंतखाब अमल में आया। Telangana State Minorities Finance Corporation is giving loans to the Muslim population who are below poverty line for self-employment and for small businesses. So we are having a target of around 3,500 for Hyderabad district, and every quarter we are selecting the beneficiaries because the number of beneficiaries is generally more than our target. So we are generally selecting them through lottery process. So this quarter we have received 1,122 consents are received from the banks, and our target is to select about 223 beneficiaries for this quarter. And so after this selection process is completed, subsidy is given by the government for category 1, that is loan up to 1 lakh is given. And under that subsidy of 80% is given by government and 20% loan is given by a bank. खुराअंदाजी में नाम न आने पर बाज़ लोगों ने मायूसी का इजहार किया। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि वो 1 साल से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, मगर आज उन्हें लोन नहीं मिला। मायूसी के आलम में लोग वापस लौट गए और हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना में फिर एक मरतबा स्वाइन फ्लू सर उठा रहा है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में 5 अफराद को स्वाइन फ्लू के शुबे में शरीक कराया गया है। 5 में से 1 मरीज को स्वाइन फ्लू का टेस्ट मुस्बत निकला है। पिछले 1 महीने के दौरान तेलंगाना भर में 25 मुश्तबा स्वाइन फ्लू के केसेस पाए गए थे और पिछले 1 महीने के दौरान 2 अफराद स्वाइन फ्लू से फौत हो गए थे। गांधी अस्पताल में स्वाइन फ्लू से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। स्वाइन फ्लू के मुतासरीन के लिए अलहदा वार्ड्स भी कायम किए गए हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। पल स्टेडियम में सुबह से दोपहर 2 बजे तक पोलिंग मुनक़िद हुई। 218 वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। सदर, जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर, ट्रेजरर और रुकन आमिला के ओहदों के लिए 18 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया है। वहीं सेक्रेटरी के ओहदे के लिए केशव नारायणा बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का पर्चे नामजदगी मुस्तरद कर दिया गया। क्रिकेट के हवाले से अजहर पर लगाई गई पाबंदी से मुतालिक अजहर की वजाहत से रिटर्निंग ऑफिसर ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। कहा जा रहा है कि सदारत के लिए हुकूमत तेलंगाना के मुशीर विवेक और विद्युत जय सिम्हा में मुकाबला है। याद रहे कि अदालत के फैसले के मुताबिक HCA को नताइज को महफूज रखने की हिदायत दी गई है। अदालत की हिदायत के बाद ही नताइज का ऐलान किया जाएगा। मुआसर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी 19 जनवरी को CRDA के हुदूद में मौजूद देहातों का दौरा करेंगे। जबरदस्ती हुसूल अराजी करने पर मुतासरा किसानों के हक में जद्दोजहद करने के लिए जगन ये दौरा कर रहे हैं। याद रहे कि सदर मुकाम के हुदूद में किसानों की अराजी जबरदस्ती हासिल करने की सख्त मुखालिफत की जा रही है। हुकूमत के मुताबिक अब तक इस इलाके में 33,000 एकड़ अराजी लैंड पुलिंग के जरिए हासिल की जा चुकी है। हुकूमत के इक़दाम पर जगन ने शदीद तनकीद की। मुकामी पार्टी अहदेदारों ने जगन की आमद के पेश नज़र जिले में इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।